Good morning, friend. Today we will start our new point of this lesson, that is a magnetic field due to the current in a solenoid. It's okay. So we will learn here the magnetic field is okay into the different conductor. In previous period we have seen there are two types of the conductor we have learned there. One is a that is a erect or the uniform conductor in straight line. When we passes the electric current, it's okay. Just due to it, electricity passes through that conductor. That time conductor produce around the one magnetic field, and we have learned with the help of the ion fillings. Because the ion filling they show the distributing in a definite manner, that is a concentric in circle form forming the different loops. That's okay. And again we have conclude there. Yes, electricity is directly proportional to the forming the loops. That is the I is directly proportional to the N. It's okay, we have learned there. Actually, again we are going to one typical examples. That's okay. Yes, that is the solenoids. That's okay. In that solenoid, actually how the electricity we have passes through them. That time how it's produce the magnetic effects or the magnetic fields around it. Okay? So for the carrying the such experimental activity, we have learned the one process how we have carried it. Just it's a simply we have do in our home also. Just okay. So we have let start. But before it, I today I have sent the today's activity quiz. Yes, okay. Through the online exam. Yes, okay. I have sent to you. That is one have a online exam activity quiz I have sent. That is in through the Google Forms. Just okay. Only we have read it. Just okay and read the lesson. And after then, just okay. This provided video clips. We have listen carefully, and then we have solve to try this activity quiz. Okay. So let us we have starts our next point. So come to the point. Yes, okay. We have starts today's point, that is a magnetic effects. है ना, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट. यहाँ पे करंट इट्स ओके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. ठीक है, अब यहाँ पे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक करंट कैसे फ्लो करता है इसके बारे में हमें क्या करना है यहाँ पे देखना है थोड़ा सा. ठीक है, दिस इज वन है मेन यूनिट. So actually your starts by the one experimental process. Yes, in that experimental process we have see here the solenoid. Actually what is the solenoid है ना, solenoids क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे. Actually solenoid means what, the solenoid एक क्या है. ठीक है, तो देखिए I have shown one diagrammatic representations here. ठीक है, and with the help of this diagram just okay we have tried to study the this solenoids. देखिए we have take one that is electric coating or the with insulating copper wire. What is this? This is it is one of a plastic coating. Yes, okay, or the insulated with having insulated copper wire. है ना, अपने घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम जैसे कनेक्टिंग वायर लाते हैं ना, तो उसी कनेक्टिंग वायर में से एक हमें क्या करना है, एक कॉपर का एक वायर लेना है, एक 6 मीटर या जितना according to our necessity. Just we have take this wire with having the insulator. Do not open the insulator. Just okay. Means we have take the copper wire with having insulator. Remember, with having insulator. Just okay. And such a wire, yes, we have put yes on any plastic pipe. Yes, those are the hollow plastic pipe. That is a PVC pipe. Yes, and we have make a circle. We have make a round it. Make a round it. Just okay. And after the round it, yes, it's become one have a loop form structure. And such a getting loop form structure, yes, it is a solenoids. Just okay. That is a coil. And we have remove the pipe. अभी उस पाइप को हमें रिमूव कर लेना है. ठीक है ना.
समझ में आ गया? एक कॉपर का वायर लेना है, इंसुलेटर के साथ ही लेना है उसको, ठीक है। और उस वायर को हमें क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन देखते हैं ना हम, कभी कभी उनके पास जैसे स्क्रू स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उसको स्क्रू ड्राइवर को क्या करते हैं, एक आधा टुकड़ा वायर का ज्यादा लंबा हो जाए तो उसे उस स्क्रू ड्राइवर को ऐसे लपेट कर उसको ऐसा राउंड कॉइल बनाते हैं, ठीक है। और उसको ऐसे राउंडेड रोटेशन में रख देते हैं, है ना। वो अच्छा दिखता है, लूप्स के रूप में लगता है। उसी तरह से हमें क्या करना है, वैसे वायर को लूप करना है, दैट इज अ सोलेनॉइड, है ना। वहां पे इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया था, स्क्रू, जैसे कि वो पेचकस बोलते हैं ना उसको हम मराठी में, स्क्रू ड्राइवर इन मराठी पेचकस, यस ओके। उस स्क्रू ड्राइवर को यूटिलाइज करके वो राउंड बनाता है ना। हमारे पास यहाँ स्क्रू ड्राइवर न हो तो हम छोटे से पाइप का टुकड़ा होते हुए हम उसको यूटिलाइज करके ऐसे राउंड की कॉइल बना सकते हैं, ठीक है। और वो हमारा बन गया सोलेनॉइड, ठीक है। आफ्टर द मेकिंग दैट गेटिंग द सोलेनॉइड्स, जस्ट ओके, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस कैरिंग द एक्सपेरिमेंट, है ना। चलिए, अभी सोलेनोइड हमने बनाया, आफ्टर देन क्या करना है, यस, आफ्टर द रिमेनिंग टू एंड्स ऑफ द सोलेनोइड्स, है ना। ये जैसे सोलेनोइड्स बनता है, जैसे देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे सोलेनोइड अभी यहाँ पे बनाया है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एक कॉपर का वायर है, एक फ्री एंड है, ऐसा मैं कॉइलिंग करता जाऊंगा, ठीक है। तो रिमेनिंग टू एंड्स, दैट इज अ ए एंड दैट इज अ बी, ठीक है ना। थोड़े लिखने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे ए और ए बी, चलिए दो फ्री एंड्स मिलेंगे, देखिए ए वाला ए और ए वाला बी, एंड इन दिस टू फ्री एंड्स, जैसे कि वी हैव कनेक्ट द बैटरीज एंड प्लग की। क्या कनेक्ट करना है बेटा, बैटरीज और प्लग की। देखिए बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल वी हैव इंडिकेटेड एज ए ई, एंड दिस इज अ प्लग की एज अ के। Always plug key is indicated by the K, battery is indicated by the E, है ना। चलिए, तो ये बना अपना सोलेनॉइड कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर। अब ये क्या करना है हमें, देखिए, जैसे हमने मैग्नेटिक बार को लेकर एक एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था, उस मैग्नेटिक बार में हमें क्या किया था, एक हार्ड कार्डबोर्ड लिया था, उसके ऊपर आयन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था, और बाद में बीचों बीच में हमने मैग्नेटिक बार रख लिया था। तो मैग्नेटिक बार रखने के बाद हमने बाजू से फिंगर के द्वारा उसे थोड़ा सा क्या किया, वाइब्रेट कर दिया, एंड आफ्टर द वाइब्रेशंस वी हैव small movements actually, yes, it's magnetic, जैसे ion filling they show the one particularly movements, just okay, and such movements, yes, it's a, that is a magnetic field producing the magnetic fields there, just okay, in a circular form। उसी तरह से हमें क्या करना है, वही सेम, वहां पे हमने बार मैग्नेट को यूज किया था ना, तो यहाँ पे हम ये सोलेनॉइड यूज करेंगे, है ना। वो नेचुरली मैग्नेट था, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, क्योंकि कल हमने जो एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किए थे, है ना, राइट थंब हैंड रूल पढ़ा था, उसमें हमें क्या सीखने के लिए मिला, पढ़ने के लिए मिला कि कुछ कौन से भी कंडक्टर में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो वो कंडक्टर के बाजू में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फोर्स बनता है, या मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, और ये एक्यूरेटली जैसे मैग्नेट के रूल फॉलो करता है या नहीं, ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। जैसे कि बार मैग्नेट को हमने यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा था ना, तो वहां पे जैसे लूप्स दिखाई देते थे, फोर्स ऑफ लाइन बन रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी हमें फोर्स ऑफ लाइन्स दिखाई देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैग्नेट तो नहीं यूज किया है हमने, तो केवल कंडक्टर यूज किया है, और कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम बाजू में क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पे आयरन फिल्म को स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, प्लग ऑन करना है। देखिए मैंने कल बताया था, रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, व्हेन यू हैव, yes, make any type of circuit, yes, we have arranged it firstly, what's remember there, yes, there is a necessity, we always, yes, switch off the key, yes okay, and when the circuit is totally complete, that time we have plug the key। तो की को हमें क्या करना है, प्लग करना है, प्लग ऑन करना है, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि की को प्लग ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, है ना। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कॉइल्स, जैसे टेकिंग कॉपर के रूप में हमने ये पढ़ा है सोलेनॉइड्स के रूप में।
तो इलेक्ट्रिसिटी बहने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो आयन फील्ड भी ऐसे स्प्रेड होंगे। वो भी पहले जैसे हमें मैग्नेटिक बार को जैसे एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था, वहां पे जैसे फोर्स लाइन मिल रहे थे, यहाँ भी हमें फोर्स लाइन मिलते हैं। फोर्स लाइन के डायरेक्शन देखिए बेटा, नॉर्थ टू साउथ। देखिए नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज नॉर्थ साइड एंड दिस इज अ साउथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों अभी यह मैग्नेटिक लाइन, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय करंट। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द ओनली पासिंग द करंट। जैसे हम करंट पास नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। यस ओके, that is a passes through a second, that is one a solenoid coil, which is a coil here solenoid, and yes ऐसे सोलेनोइड कॉइल से में हमें एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसे कॉइल ये बना सकते हैं घर में, एक सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको देखा है। अभी देखिए बेटा, तो ये तो हमने देखा है, लेकिन एक्चुअली अपनी बुक में इसकी थ्योरी पूरी तरह से थ्योरी दी वाली है, ठीक है। तो थ्योरी को हम रीड कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया, इस बुक तो अपने पास है ना। केवल देखने के लिए बुक होता है क्या हमें? जैसे लाया, इस स्कूल बैग में रख दिया, ठीक है, स्कूल लेके चले गए, ठीक है, उसको केवल संभालना यही नहीं, तो उसको हमें लर्न करना है, पूरे लर्न करना है। तो देखिए ये थ्योरी रीड करिए, एक सिंपल सी है, जो मैंने बताई वही पूरी तरह से थ्योरी है ना। देखिए बेटा, जैसे कि कोई भी कॉपर वायर होता है, वो एक रेजिस्टिव कोटिंग है, उसका रेजिस्टिव कोटिंग, उसको निकालना नहीं, इसीलिए मैंने वहां पे इंसुलेटर विथ इंसुलेटर ऐसा एम्फोसाइज किया था। यस ओके, एंड इज वाउंड, वाउंड यानी कि गुंडाने, यस ओके, इन अ चेन लूप। ऐसे वाउंड करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद ली हमने? पीयूसी पाइप की मदद ली। यस ओके, लूप्स लाइक अ स्प्रिंग एंड इट इज कॉइल्ड अ सोलेनॉइड। वो क्या बनेगा? कॉइल सोलेनॉइड। एंड व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट passes through the solenoid, through the battery, yes okay, that magnetic line force are produced, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही है? बन रही है। देखिए बेटा, है यहाँ पे मैं बताने का तो प्रयास किया ही हमने एक्चुअली। तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो रही है? बन रही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसमें डिक्टेट कर दिया है, ठीक है। तो डिक्टेट कर दिया है। अभी यहाँ पे फिर डिक्टेट करना या कुछ बताने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो यही देखिए बेटा, वही जो बताया था वही है, इसको खाली पढ़ लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो करंट हम जैसे ऑफ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा। तो ये एक्चुअली हमें क्या बता रहा है? इट मीन्स द, दैट इज वन हमें इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी बताता है। यस, विद इन द सोलेनोइड कॉइल, यस, इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड in a solenoid, yes, is a uniform as like a magnetic bar। जैसे मैग्नेट बार था ना, तो मैग्नेट बार जैसे प्रॉपर्टी प्ले कर रहा था, मैग्नेट की प्रॉपर्टी बता रहा था, उसी तरह से ये सोलेनॉइड भी क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे बताता है। कोई डाउट है यहाँ पे? पढ़ लेना है, सही ढंग से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछना है, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो ये हमने यहाँ पे देखा है। अब इसके बाद एक्चुअली हम दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, ठीक है। तो अपना दूसरा वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे? एक्चुअली देखिए बेटा, एक सिंपल सा पॉइंट है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें हमें एक छोटा सा ट्राई करना है, यस, करके देखना है, क्योंकि अपना बुक्स टोटली एक्टिविटी के और या एक्टिविटी के पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कुछ ऐसे मटेरियल्स यहाँ पे लेने हैं। अभी इस मटेरियल को लेकर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा ट्राई करना है। तो ट्राई करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कुछ मटेरियल है ना। जैसे देखिए बेटा, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर। देखिए फ्लेक्सिबल कॉपर वायर, जो कॉपर वायर को हम फ्लेक्सिबल, क्योंकि कॉपर वायर कभी कभी होती ज्यादा विड्थ की होती है ना, वो सही ढंग से बेंड नहीं हो पाती है ना, रिजिड या टर्जिड होती है, तो वैसे नहीं लेना है हमें, है ना। अपने टीचर्स को सजेशंस के द्वारा, टीचर्स इन प्रेजेंस ऑफ टीचर्स, यस वी हैव डू द एक्टिविटी, यस मींस वी हैव टू गो ऑन अ कॉपर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर। अपने घर में जो हम सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं वो फ्लेक्सिबल ही होती है। एक स्टैंड लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बस हॉर्सशू मैग्नेट लेना है। एक्चुअली स्पेशली इधर ध्यान दीजिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक स्टैंड
ऐसा बताया। एक्चुअली स्टैंड यहाँ पे कौन से लेने हैं, वी हैव यूज्ड द स्टैंड वुडन स्टैंड। देखिए यहाँ पे जो स्टैंड हमें लेने हैं, ये पूरे स्टैंड कैसे होने चाहिए बेटा, दैट इज रिक्वायर्ड स्टैंड, दैट दीज आर वन है वो वुडन स्टैंड, ये पूरे वुडन स्टैंड होने चाहिए। ठीक है, क्यों वुडन स्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट यूज करेंगे हम, जैसे मैग्नेट यूज करें तो वुडन स्टैंड नेसेसरी होगा। जैसे हम यहाँ पे आयरन स्टैंड यूज करेंगे क्या, तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो रिजल्ट है सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें स्पेशली आई हैव इंडिकेट हियर, आई हैव एम्फसाइज हियर, यस वी टेक द स्टैंड, बट व्हिच काइंड ऑफ द स्टैंड, वुडन स्टैंड। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट, देखिए मैग्नेट है, ठीक है, तो विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। केवल मैग्नेट लेना है, नहीं तो कोई बच्चे मैग्नेट लेते हैं, लेकिन मैग्नेट इतना ऐसा वो जैसे घिसा पिटा होता है, इसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट बनने वाले होते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे हम जितना सारा मैग्नेट्स, जैसे देखिए बेटा आयरन आर्टिकल्स के ऊपर रखेंगे, जैसे जैसे उसको हीट में रखेंगे, उसकी जैसे कि कोई तोड़ जोड़ होगी, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कम कम होने लगता है। ठीक है, तो मैग्नेट होना चाहिए लेकिन पावरफुल फील्ड के साथ होना चाहिए, तो ऐसे मैग्नेट हमें लेना है। इस प्रोसीजर में क्या करना है, चलिए, तो ये प्रोसीजर मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं डायग्रामेटिक के रूप में यहाँ पे बोलूंगा। चलिए, तो यूजिंग द स्टैंड इज फिक्स कॉपर वायर, यस, अब एक कॉपर वायर लेना है, इट पासेस थ्रू द पोल ऑफ, दैट इज वन हवा पोल्स ऑफ द हॉर्सशूज मैग्नेट। अभी हॉर्सशूज मैग्नेट के जो पोल होते हैं ना, ऐसे हॉर्सशू, यानी कि देखिए हॉर्सशू ऐसे इस तरह से, यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो हॉर्सशू मैग्नेट ये पोल के बीचों बीच में उसे ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, वैसे अरेंज करने के लिए हमें स्टैंड तो होना ही चाहिए, लेकिन स्टैंड कौन सा लेना है हमें, वुडन स्टैंड, जस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वायर है इस हमें कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद उसको सर्किट में अरेंज करना है। ठीक है, एक्चुअली अभी ये देखिए पढ़ के लीजिए, इस पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल से होता है। ठीक है, पढ़िए, यस, मैंने तो डिक्टेट कर दिया है, पढ़ना है। चलिए, आफ्टर देन वी हैव गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट ओके, फॉर द कैरिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। देखिए, यही हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी देखनी है, एक सिंपल सा, मैंने दो स्टैंड बताए थे ना, ये वाला देखिए, ये वाला एक स्टैंड है, वुडन स्टैंड है, लेकिन कौन सी स्टैंड है, वुडन स्टैंड। हमने फ्लेक्सिबल वायर ली थी ना कॉपर की, देखिए ये वुडन स्टैंड को, ये दोनों दीज आर वन है हैंड्स ऑफ द स्टैंड फॉर फिक्सिंग द कॉपर वायर, है ना, फिक्सिंग वायर कॉपर को फिक्सिंग करने के लिए यहाँ पे कौन है, दीज आर वन ऑफ टू हैंड्स, यस, विद द हेल्प ऑफ इट्स हैंड वी हैव फिक्स द कॉपर वायर। अभी कॉपर वायर को हमें फिक्स करना है स्टेच कर कर, ठीक है, लेकिन फिक्स करते कैसे किया, बीचों बीच, ये हॉर्सशू मैग्नेट के मिडल में कॉपर वायर होनी चाहिए, है ना, ऐसे बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो मिडल में वो कॉपर वायर आएगी। ठीक है, तो हॉर्सशू मैग्नेट के लिए अलग से हमने दूसरा वुडन स्टैंड यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अभी जैसे इस फिक्स करने के बाद ये जो दो टर्मिनल्स थे ना, जैसे सोलेनॉइड के दो टर्मिनल फ्री मिले थे, तो उसी तरह से यहाँ पे दो टर्मिनल फ्री मिलेंगे, तो दो टर्मिनल में हमें क्या करना है, सर्किट को पूरा करना है। सर्किट में प्लग की है, बैटरीज है, यस, एज यूजुअल वी हैव अरेंज इट। अभी अरेंज करने के बाद when we have after the completion of the circuit we have plugged the key, completion of the circuit we have plugged the key, and when we have plugged the key circuit become regular। ठीक है, electric current passes through the coil, and how the electric current passes is from positive terminal to the negative terminal, high potential to the low potential, that is a negative to positive, ये वाला ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। इलेक्ट्रिसिटी जब बहेगी तो व्हाट हैपन is due to that passing current through that conductor, yes, okay, the around the coil, sorry, around the copper wire, yes, there is a magnetic field, yes, okay, और ये हमने कॉपर कहाँ पे रखा है, एक्चुअली वी हैव पुट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट है ना, इसमें ऑलरेडी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जब यहाँ पे फिर कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को हमने जैसे उसको पास किया, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनी। अभी दो दो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने देखा है ना, कभी कभी हम
छोटे बच्चे मैग्नेट के साथ खेलते हैं, हम भी खेलते हैं ना, कभी कभी देखिए 2 मैग्नेट्स लेते हैं, तो 2 मैग्नेट्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड जैसे इकट्ठा लाने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, रिपल्स करते हैं, है ना। जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो तो रिपल्स हो गए, नॉर्थ साउथ हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर की वायर फ्लेक्सिबल थी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बने, वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड बना और हॉर्सशू मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी कारण वो क्या होने लगेगी, वाइब्रेट्स होने लगेगी। ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट की तरफ। ठीक है, तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक करंट, अभी ध्यान दीजिए, है ना, हमने क्या देखा था, लेफ्ट राइट थंब हैंड रूल देखा था ना। देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ है, और इस बाजू में हम जब देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे, यहाँ पे इस तरफ है, आ दिशा, है ना। देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट ये ऐसा है ना, जैसे लेफ्ट साइड से चलता है, अपनी लेफ्ट साइड से, अब मेरे तरफ से लेफ्ट साइड है, मेरे लेफ्ट साइड से जब चलेगा तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरे राइट साइड से आएगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, है ना बेटा। तो देखिए, तो यहाँ पे ये तो मैग्नेट तो फिक्स है, कॉइल भी यहाँ पे फिक्स है ना, फ्लेक्सिबल पोजीशन में फिक्स है यहाँ पे एक्चुअली। तो ये कॉइल यहाँ पे, यस इट शो द वाइब्रेट्स, व्हाई, बिकॉज इट्स इफेक्ट्स yes only due to the passing electric current and it is a yes effect of magnetic field। अभी ये मैग्नेट न हो तो क्या होगा, ये मैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट हमने रखा नहीं, बाजू में कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, yes means the copper wire in straight position they do not show any movements, वो movements नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताया, बता रही है ये मूवमेंट्स तब जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि कॉपर वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहने के कारण, लेकिन जस्ट इसके अराउंड द कॉपर वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या करता है, इफेक्ट बताएगा। ठीक है, तो ये इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें करना है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम अभी थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसी को क्लियर करने के लिए चलिए बेटा अभी मैं इसको अपने सामने लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये जो दो, ये देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है, देखिए कॉपर की वायर कैसे हमने बीचों बीच ऐसे, मैंने तो बताया, बताने के बाद में पहले की शुरू में ये बताना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली नहीं, मैंने ये बताकर यस अभी ये बताने का ये तो किया, लेकिन अभी ध्यान रखिए। चलिए, तो ये क्या बना है बेटा, यहाँ पे कॉइल आ चुकी, अभी क्या बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये वाले जो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के साइन जो दिखा दे रहे हैं ना, गुनीले गुनीले जैसे, या प्लस प्लस साइन, तो ये क्या है, दिस आर बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये टर्म्स हमें आने वाले आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम देखने हैं, जैसे कि 11th 12th में देखने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 10th के लिए बस इतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे इंडिकेट आ रहा है। चलिए दूसरे लूप्स में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए करंट जैसे ऊपर चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है, तो ये कॉइल क्या हो रही है बेटा, जैसे कॉइल देखिए एक कॉइल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ, देखिए मैग्नेट का ये नॉर्थ है, और मैग्नेट का ये हॉर्सशू मैग्नेट का ये नॉर्थ है, और ये हॉर्सशू मैग्नेट का साउथ है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, ये कॉइल जैसे इस ये शायद इसमें जैसे साउथ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपोज डायरेक्शन में अट्रैक्शन करता है, तो यहाँ पे अपोजिट फील्ड बनते हैं, और अपोजिट फील्ड बनने के कारण देखिए ये बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो यहाँ पे ये निगेटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन यहाँ पे क्या रहा है, कॉइल क्या हो रही है, यस कॉपर की कॉइल नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी अभी नीचे चलती है, जब नीचे चलेगी तो कॉइल क्या होगा, ये लूप्स, देखिए लूप अपोजिट में होगा, यानी कि कॉइल साउथ की तरफ चलने लगेगी। ठीक है, एंड करंट पास अभी कैसे हो रहा है,
कंटिन्यू हो रहा है ना, कंटिन्यू होता है तो करंट कैसे पास होगा, यस अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दैट्स पाथ, दैट इज अ सर्किट, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं ना हम कंटिन्यूस सर्किट प्रोसेस, कंटिन्यूस सर्किट गो ऑन देयर और द सर्किट कंटिन्यू देयर, कंटिन्यू बन रहा है। और जैसे कंटिन्यू बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, और जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। चलिए मैंने क्या बताया, देखिए बेटा, जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मूवमेंट्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की मूवमेंट भी चेंज होगी। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है बेटा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बाद मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, है ना। चलिए ये तीन टर्म्स मिलते हैं यहाँ पे, तो इसका रिलेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए बेटा समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, चलिए दिशा बदल रही है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर मूव कर रहा है। देखिए तीन टर्म्स ध्यान रखना है, पहली बच्चों कौन सी टर्म है, इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी कंडक्टर मूवमेंट्स। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली ये दिखाई देता है, तो एक दिस रिलेशन ऑफ टर्म्स वी हैव लर्न हियर बाय द वन साइंटिस्ट, इट्स ओके, एंड दैट इज अ फ्लेमिंग, है ना। तो हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स के द्वारा, दैट इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी रूल देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट थंब, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, अब यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हमें क्या, किसका रिलेशन देखना है, इसमें हमें रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड यस मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, यस डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन। चलिए तो यहाँ पे देखिए, करंट जब ऊपर की तरफ था तो लूप्स कहाँ पे बन रहा था, नॉर्थ की तरफ आ रहा था। करंट जब नीचे से पास हो रहा था लूप्स कहाँ पे बन रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। चलिए ये तीन रिलेशन हमें यहाँ पे समझना है। चलिए बेटा समझ में आ गया, फिर देखिए छोटी सी, इसीलिए डायग्राम को थोड़ा सा हमने सेपरेटली बताने का प्रयास किया है। चलिए अभी इस डायग्राम को ये छोटे से, चलिए अभी पढ़ना तुम्हारा काम है, पढ़ना है, समझ लेना है। चलिए यहाँ पे हम जिसे हम बता सकते हैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन होते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए जैसे जैसे अपने को जैसे टेक्नोलॉजी ने दिया है, उसी तरह से हम यहाँ पे उस जैसे जैसे हिसाब से यूज करके यहाँ पे देने का प्रयास हो रहा है। चलिए आफ्टर देन वी आर गोइंग टू द आवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अभी फ्लेमिंग की तरफ आना है हमें, तो फ्लेमिंग क्या बताते हैं चलिए हमने देखा था ना राइट थंब हैंड रूल, तो उसी तरह भी फ्लेमिंग को। चलिए तो फ्लेमिंग को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना जो लेफ्ट हैंड, कल हमने अपना राइट, ये राइट ये देखा था, अभी लेफ्ट लेफ्ट। चलिए अभी हम लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड को, यस वी हैव टेक यूर, दैट इज वन हैव, यस दिस इज अ विच फिंगर हियर, हम तर्जनी बोलते हैं, है ना, यस ओके, एंड सच तर्जनी, इसको हम क्या बोलना है बेटा, तर्जनी। अब ये जो तर्जनी होती है, तर्जनी बोले तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो अपने थंब के बाजू में होती है ना। तर्जनी के बाद दूसरी वाली ये फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है ना, तो ये मिडिल फिंगर है। तो यहाँ पे हमने तीनों फिंगर को वी हैव टेक परपेंडिकुलर टू विथ ईच अदर। देखिए ध्यान दीजिए कैसे बेटा, थंब, यस ओके, अब ये वाली ये मिडिल, ये तर्जनी एंड मिडिल फिंगर, yes we have taken, yes yes how is position perpendicular to with each other। अभी देखिए अपना ये जो थंब है कैसा बेटा, स्ट्रेच है इरेक्ट पोस्चर में, है ना। तो ये क्या कर रहा है, तो एक्चुअली ये हमें क्या करता है, जो तर्जनी होती है ना, ये क्या इंडिकेट करेगी, दिस इंडिकेट द दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है, यस। एंड सच मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द, ये मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा बेटा, यस इट्स इंडिकेट द, यस हाँ कौन बताएगा, यस इट्स इंडिकेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और थंब रिप्रेजेंट क्या करती है, तो थंब रिप्रेजेंट करती है दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर,
कंडक्टर, कंडक्टर का भी ऐसा। चलिए तो देखिए, तो जो पहला लूप था ना, तो पहले लूप जैसे कि नॉर्थ की तरफ चल रहा था ना, तो नॉर्थ की तरफ तो ऐसा, तो करंट कहाँ था, ध्यान दीजिए बेटा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अपनी किताब तुम्हारे पास है, किताब में जो बुक में जो जो डायग्राम है ना, उसी डायग्राम को लेकर अभी करंट ऊपर चल रहा है, देखिए करंट ऊपर चल रहा है ना, करंट ऊपर चल रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये मैग्नेटिक, चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ ये चलिए ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है ना, यस, करंट जब ऊपर चल रहा है, तो अभी देखिए करंट अभी नीचे चल रहा है, तो नीचे नीचे चलता है, तो ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, तो ये अपनी कॉपर कहाँ पे चल रही है, साउथ की तरफ चल रही है। ध्यान दीजिए, समझ लेना है, समझ लेना है, जब समझ में आएगा ना एक्सपेरिमेंट, तो इट्स वेरी इजी, थ्योरी बहुत ही इजी होती है, जैसे समझोगे तो थ्योरी हम कैसे भी हम उसको इसे प्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। एक्चुअली हमें एक्टिविटी समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता है, तो थ्योरी इट्स अ वेरी टिपिकल, केवल थ्योरी यहाँ पे लर्न करने के लिए उसको रेटिफाई करने से साइंस हम नहीं पढ़ पाते, साइंस को पढ़ना हो तो उसमें मगन होना है, जस्ट ओनली द इनटेक होना है, जैसे फुल्ली क्यूरियोसिटी के साथ हमें उसको लेना है, समझ के लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें ये मिलता है, देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला, ये मैंने जो करके दिखाया था ना हैंड्स के द्वारा, यही यहाँ पे है, ठीक है। तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, दैट इज कंडक्टर को मूवमेंट्स कर रहा है। अभी ये जो है ना तर्जनी बोलते हैं, इसको क्या बोलना है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यस। अभी देखिए मिडिल फिंगर, ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फिगर को देखना है, फिगर को साथ रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेकर हमें उसको प्रैक्टिकली करके देखना है, करके देखना है, बुक अपने पास है, अपना लेफ्ट हैंड तुम्हारा ही है ना, केवल सोचना है, जैसे जैसे पढ़ेंगे जैसे उसे सोचकर उसे समझ कर हमें ये करना है, जैसे हम छोटे से क्लू लेकर घर में करते करते, है ना, पढ़ते पढ़ते जैसे करेंगे, विद एक्टिविटी से हम जब लर्न करेंगे तो एंजॉयमेंट ही होगा और हमें नॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। और याद रखने भी कि कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना, लेकिन पाठ करना या उसे रेक्टिफाई करना ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना। चलिए, तो अलग से, तो ये डायग्राम जैसे हम जो पिक्चर के द्वारा, जैसे कोई भी हर एक व्यक्ति पेंटर नहीं होता है, चित्रकार नहीं होता है, तो हम एग्जाम में ऐसे इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 लाइन बनाकर परपेंडिकुलर, मैंने क्या यूज किया था टर्म, वी हैव टेक योर थंब, हाँ, which is finger, that is a index finger and middle finger, take a perpendicular to with each other, thumb represent the movement of conductor, yes, index finger represent the index present क्या करती है, index that is a magnetic field, and middle finger represent the flow of electric current, direction of electric current। चलिए, तो these are one have a relationship between, yes, between electric current, magnetic field and conductor movements, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलते हैं। अभी इसी टर्म्स को लेकर हम अपने लाइफ में या अपने डेली यूजेस में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या गैजेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू, वी विल सी टुमारो विद द नेक्स्ट यूनिट।